What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Tuesday, 14th of April and today is a market holiday. And because of which, the Nifty's expiry that was supposed to happen today happened on Monday, that was yesterday. On Friday, the markets gave a very optimistic close and मैं कह रहा था कि it is not seeming pretty right because the markets जब एंग्जाइटी इतना ज़्यादा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन इतना ज़्यादा है, तो मार्केट्स को इतना कॉन्फिडेंस के साथ, इतना ऑप्टिमिज्म के साथ वीकेंड को एंटर नहीं करना चाहिए. बट द मार्केट्स गेव अ क्लोज डिसाइसिवली अबाउट 24,000 लेवल्स. But then comes the news over the weekend where the talks at Islamabad had failed and yet again we are seeing tweet wars from Trump, tweet wars from the Iran government, and Trump even went on and said that आप क्या ब्लॉक करने वाले हॉर्मुज को, हम खुद ब्लॉक करेंगे and we will target all those countries who are paying illegal toll to Iran and will not give those particular vessels safe passage in international waters. And because of which again the sentiment turned negative and we opened with yet again a decent amount of gap down. Almost 450 points gap down के साथ हम open हुए from 24,050 close on Friday. Again on Monday morning the Nifty was trading at 23,600. Within the first 3 minutes Nifty made a bottom 23,550 के आसपास bottom बनाया, but from there onwards the market saw a steep recovery almost 23,550 से लेके 23,900 तक markets ने एक one way kind of a rally दिखाया and it was a decent kind of an uptrending day. A lot of people would have made money going trying to catch the bottom. And from the option sellers perspective also, it was quite a manageable day because the straddles opened at 160 and although there was a 400 point of move, the markets did this gradually. There was no spikes as such, there was no sharp reversals as such, it was a unidirectional move. So as long as you were in the right side of the volatility, you would have done quite well yesterday. So tomorrow is again Sensex 1DT and because of again increased geopolitical tensions, the VIX again started to trade about 20 and at this point the world is as chaotic as it can get and nobody has a clue where is the future course of this war gonna be. So Sensex का straddle जो है 1,500 rupees के आसपास close हुआ है on a Monday because it was kind of pricing in the uncertainty and the market holiday that we have on Tuesday. So let's get to the terminal and let's see what should be our trade plan for Wednesday on a Sensex 1DT. All right. Positional पे daily charts look pretty chaotic. You might look that, oh, the markets have formed a bottom and the markets are coming back, but all these swings are pretty brutal, especially if you're trading with extreme leverage. So if you are a positional trader, how do you weather out these kinds of moves? The only way is to trade at lower leverage. What do I mean by lower leverage? You have to trade at maximum 1x पे जनरली ट्रेड करना चाहिए ऐसे वोलेटाइल मार्केट्स को, बट मैक्सिमम इफ योर रिस्क एपेटाइट इज स्लाइटली हायर यू हैव टू गो मैक्सिमम 2x. 2x का मतलब क्या है? Let's say Nifty is trading at 24,000 levels, right? 24,000 levels, multiply it by the lot size which is 65. So somewhere around 17 lakh rupees का notional value आता है एक lot of Nifty का. So basically 2x notional बोले तो for every 8.5 lakh rupees or for every 9 lakh rupees you have to trade one lot of either futures or options. So इससे ज़्यादा अगर आप leverage के साथ trade करोगे then the probability of you blowing up or taking a serious dent or serious drawdown to your equity curve is extremely high, considering the fact that the markets are gapping up, down and moving eccentrically on an intraday basis. So अगर कल की बात करें तो yes, I told you that this 24,000 level will be acting as some sort of a maxima for the expiry and हम expect कर रहे थे कि the market should be opening somewhere between 24,800 and 24,900, but because of whatever happened on Sunday evening and because of the Trump's tweet of the Strait of Hormuz का blockade, the markets actually reacted a bit much and we opened at almost 23,600 levels and वहाँ से एक strong मारुबोजू candle form हुआ है एंड आज भी गिफ्ट निफ्टी जो है 24,150 पे आसपास ट्रेड कर रहा है एंड इवन द यूएस मार्केट्स क्लोज्ड इन ग्रीन एंड द ओनली थिंग दैट वाज बेरिश ऑन मंडे वाज द गैप. तो हमारा जैसे गैप ओपन हो गया उसके बाद मार्केट्स एक्चुअली पॉजिटिव ही रहा. विद इन द फर्स्ट 3 मिनट्स द मार्केट्स एक्चुअली मेड द बॉटम. अगर 5 मिनट्स चार्ट पे अगर जाके बात करेंगे यू कैन नोटिस दैट फर्स्ट 3 मिनट्स पे ही मार्केट्स बॉटम बना दिया 23,550 के आसपास एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स इट वाज अ वन वे काइंड ऑफ अ मूव एंड अ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव बीन स्टक इन द शॉर्ट कवरिंग हियर एंड अगेन एट दिस कैंडल. तो दो जगह पे शॉर्ट कवरिंग की एक काफ़ी ज़्यादा स्पाइक थोड़ा बहुत देखने को मिला था, बट अगेन द पुट्स वर नॉट होल्डिंग द वैल्यू. द पुट्स वर एक्चुअली लीनियरली गेटिंग क्रश्ड एंड द स्ट्रैडल वाज आल्सो लीनियरली गेटिंग क्रश्ड. 150 160 के आसपास स्ट्रैडल ओपन हुआ एंड उसके बाद देयर वाज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ क्रश
and it was not a tough day at all. It was an easy day, apart from the fact that in the last half an hour the markets actually moved erratically on both the directions, where the call option spiked up, the put option spiked up. That too, all the spikes and the cool off used to happen in a single minute candle. तो एक ही मिनट में the call used to double and then it used to half get crushed, and similarly the put used to triple and then it used to get crushed. So the last 25 to 30 minutes were chaotic, but apart from that the expiry was quite manageable. So मेरा personally 0.4% पे 0.45% के आसपास मैंने क्लोज किया है कल. तो let me know in the comments आपका जो expiry है कैसा रहा. So to talk about tomorrow's Sensex 1DT, तो Sensex पे decent kind of a premium रहा because today was a market holiday and overnight risk काफ़ी ज़्यादा है, तो the markets have been pricing that kind of a risk. So tomorrow most probably this should be opening somewhere around 1100 और 1000 के आसपास भी अगर ओपन होता है तो I'll not be too surprised, and 1000 के आसपास ओपन होके probably we'll be seeing an 800 close, because last time भी Sensex expiry के पहले दिन markets 800 rupees के आसपास close हुआ था, and if markets give a close about 24,000 levels tomorrow, then expect straddle to close at 800. तो अगर 1000 rupees पे अगर straddle open होता है and 800 rupees पे close होने का जो probability ज़्यादा है, तो then that will leave us with a potential of 200 points of wall crush, and TTD के कहो wall crush को 200 rupees का straddle हमको खाने को मिलता है as an option seller. तो for that how should we plan? ठीक है, तो एज पर गिफ्ट निफ्टी, जो गिफ्ट निफ्टी अभी दिखा रहा है, तो दैट इज शोइंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ गैप अप. सो मोस्ट प्रोबेबली अगर आज रात फिर से एक नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ प्रोग्रेस नहीं होता है, तो देन वी मस्ट बी ओपनिंग समवेयर अराउंड दीज लेवल्स. 77,600 इन सेंसेक्स टर्म्स, 77,600 77,700 के आसपास हम लोग ओपन होना चाहिए. एंड द आइडिया इज अगर मार्केट पहले फर्स्ट 15 मिनट्स यहाँ पे सस्टेन कर देता है, तो देन वी कैन have sideways to bullish kind of a positions. मतलब क्या है, basically I would like to short these puts, this and below level का जो नीचे लेवल का जो पुट्स है उसको मैं शॉर्ट करना पसंद करूंगा विद एवरी डिप. तो बेसिकली अगर मार्केट फर्स्ट 15-20 मिनट्स तक इसके ऊपर अगर सस्टेन कर देता है, तो देन विल ट्राई टू शॉर्ट द पुट्स एट एवरी डिप. तो बेसिकली डिप को कैसे मेजर कर सकता है, तो एक 20 मूविंग एवरेज लगा लो, एक 10 मूविंग एवरेज लगा लो ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक 5 मूविंग एवरेज लगा लो. तो जब भी मार्केट उस मूविंग एवरेज को ऐसे अप्रोच करेगा, तो देन उस मूविंग एवरेज के आसपास हम लोग उसको डिप मान के हम लोग ओटीएम्स को शॉर्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस. नाउ यहाँ पे इस बुलिश बायस को हम लोग दूसरी तरह भी ट्रेड कर सकते हैं. दैट इज जब मार्केट मान लो 77,700 के आसपास है या 77,600 के आसपास है, इफ यू आर बुलिश देन यू कैन एक्चुअली बिल्ड अ 78,000 स्ट्रैडल. तो अगर मार्केट धीरे धीरे ऊपर मूव करना शुरू करता है, टीटाडी के तो आपको 200 पॉइंट मिलेगा, बट एट द सेम टाइम यू विल गेट अराउंड 400 पॉइंट्स ऑफ डेल्टा एज वेल. सो यू विल control your mark to market and you'll have a nice smooth growing mark to market curve. तो बुलिश बायस को ऐसे भी प्ले कर सकते हैं. एंड कॉल रेशियोज, डेबिट कॉल रेशियोज की मैं जो बात करता हूँ, आई वुड नॉट suggest debit call ratios, especially when you'll have to carry forward that position. So अगर इंट्राडे के लिए ट्रेड करना है तो डेबिट कॉल रेशियोज को मैं सिर्फ एक्सपायरी डे पे ही मैं प्ले आउट करना पसंद करूंगा, या थोड़ा लॉन्गर डेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स को प्ले आउट करना पसंद करूंगा. यूजुअली दिस 1DT to 2DT ट्रांजिशन, 0DT to 1DT ट्रांजिशंस को जो होता है, इस ट्रांजिशंस पे मैं जनरली लाइक जो कॉल रेशियोज को मैं प्ले करना पसंद नहीं करूंगा. सो दैट्स वाई कल अगर इस बुलिश बायस को प्ले करना है तो वन इज एट एवरी डिप, तो यू कैन शॉर्ट द पुट्स अंटिल अनलेस द मार्केट स्टार्ट्स कमिंग हियर. अगर मार्केट इस रेंज के अंदर वापस आना शुरू कर देता है, देन वी हैव टू चेंज आवर बायस एंड वी हैव टू गो बेरिश. तो बेसिकली डे हाई जो बनता है, उस डे हाई को स्टॉप लॉस लगा के हम लोग बेरिश ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हैं. एंड अगर हमको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अगर दिन के एंड पे है, तो उस प्रॉफिट कुशन को थोड़ा बहुत हम लोग हेज को बाई करके उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज द अप्रोच. बट मान लो कि आज के दिन कुछ आई एम मेकिंग द वीडियो समवेयर अराउंड 2 o'clock इन द आफ्टरनून, एंड अगर रात तक कुछ और एस्केलेशन हो गया एंड सडनली द सेंटिमेंट्स चेंज एंड सडनली सेंटिमेंट नेगेटिव बन जाता है एंड द मार्केट स्टार्ट्स ओपनिंग विद अ गैप डाउन, तो देन कल का जो रेंज है दैट इज दिस 76,000 लेवल्स ऑन द डाउन साइड एंड प्रॉब्ली 7,000 levels on the upside. ये जो 1,000 पॉइंट का रेंज है, that should be the range for tomorrow as well and even for the expiry until unless we see a big gap. तो यहाँ पे मैं प्रिफर करूँगा कि मैं कल स्ट्रैंगल ट्रेड करूँ, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक डिसेंट सा एक
स्विंग एंड डिसेंट सा एक रेंज हमको मिल जाता है। एंड एट द सेम टाइम मैं जो स्ट्रैंगल में इनिशिएट करने वाला हूँ प्योरली न्यूट्रल स्ट्रैंगल में इनिशिएट नहीं करूंगा, बट रैदर आईड वेट फॉर द मार्केट्स टू कम नियर दी जोन्स। यहाँ पे जोन्स के आसपास आने के लिए मैं वेट करूंगा। एंड यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो मैं एक बेरिश ट्रायंगल इनिशिएट करूंगा, यहाँ पे आएगा तो मैं एक बुलिश ट्रायंगल इनिशिएट करूंगा। व्हाट डू आई मीन बाय ए बेरिश ट्रायंगल? फॉर एग्जांपल आप कॉल को शॉर्ट करोगे 200 रुपीज पे, ठीक है, एंड आप पुट को शॉर्ट करने वाले हो समवेयर अराउंड 80 रुपीज या 90 रुपीज पे। सो इन दिस केस एज द मार्केट स्टार्ट्स कमिंग डाउन, ये जो 200 रुपीज है वो ज़्यादा जल्दी पिघलता है एंड दिस 80 विल नॉट स्पाइक एज मच। एंड जैसे मार्केट इस सेंटर के रेंज में आ जाता है योर पोजिशन ऑटोमेटिकली बिकम्स न्यूट्रल। तो दिस काइंड ऑफ अ प्राइस एक्शन असिस्टेड स्ट्रैंगल्स को या प्राइस एक्शन असिस्टेड स्ट्रैडल्स को मैं प्ले करना पसंद करूंगा, बिकॉज अगर 1100 के ऊपर अगर स्ट्रैडल खुलता है तो देन दैट वुड गिव मी अनदर 250 पॉइंट्स। मतलब आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि 800 रुपीज पे क्लोज होने वाला है। लेट्स से कल अगर मार्केट एक फास्ट एक गिरावट देखने को मिल जाता है, देन प्रोबेबली द वॉल्स माइट स्पाइक अप, बट गोइंग बाय व्हाट द मार्केट्स हैव बीन प्राइसिंग ओवर द लास्ट कपल ऑफ वीक्स, देन आई एम टेकिंग द बेट दैट 800 to 850 रुपीज के आसपास कल का स्ट्रैडल जो है वो क्लोज होना चाहिए अहेड ऑफ एक्सपायरी। ठीक है, व्हाट इफ देयर इज अ ह्यूज गैप डाउन? अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो देन वेट फॉर दिस लेवल एंड इस लेवल पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हम लोग एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बट अगर स्टॉप लॉस अगर जाता है तो देन आई वुड नॉट गो इन द डायरेक्शन of the trend, because even after repeated bad news all the global markets are reacting positively. So for tomorrow, कल के लिए, सिर्फ कल के लिए मार्केट्स में मैं थोड़ा बाय द डिप काइंड ऑफ अप्रोच रखना पसंद करूंगा। एंड ऑफ कोर्स पोजीशन साइज इन कंट्रोल होना चाहिए एंड स्टॉप लॉसेस होना चाहिए, एंड यू शुड बी निम्बल इनफ टू चेंज योर डायरेक्शन इफ अट ऑल द मार्केट डजंट सस्टेन दोज लेवल्स। ठीक है, तो 70% प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट्स ये हाई के आसपास ओपन होने वाला है। एंड अगर मार्केट्स 10 o'clock के पहले यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता है या मार्केट्स मान लो इसके ऊपर ओपन हो जाए एंड इस लेवल को ना तोड़े टिल 10 o'clock एंड मार्केट्स इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो एज आई सेड हम लोग बुलिश ट्रेड्स लेंगे बाय ईदर having some sort of a offsetted kind of a straddle or some sort of a bullish kind of a strangle, or even by selling naked puts with strict stop losses. But अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो देन yesterday's range will be considered as a range and will be initiating a bearish straddle or a bearish triangle if the market comes near the ceiling, or will initiate a bullish triangle if the market comes near the floor. ठीक है, अगर मार्केट इस रेंज के बीच में अगर खुल जाता है तो देन मेरे लिए एक रेंज यहाँ पे भी फॉर्म हो जाता है एंड दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट सिनेरियो फॉर एन ऑप्शन सेलर टुमारो, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 77,300 या 77,400 के आसपास अगर मार्केट होवर करना शुरू कर देता है देन मोस्ट प्रोबेबली विल बी एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ अ लो रेंज डे काइंड ऑफ अ सिनेरियो टुमारो, एंड दैट विल गिव ओनली प्रोबेबली 300 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड एंड 300 पॉइंट्स ऑन द डाउनसाइड, एंड दिस मीन्स द मार्केट्स विल बी वाइब्रेटिंग मल्टीपल टाइम्स विद इन दिस रेंज। एंड आपको यहाँ पे छोटा साइज के साथ 77,300 स्ट्रैडल पे हम लोग बैठ सकते हैं with probably 10% of the size and eat that 200 points of a crush, provided you are not forced to delta hedge विद द मार्केट स्विंग्स। तो ये मार्केट स्विंग्स पे आपको होल्ड करना पड़ेगा एंड मार्केट्स को ज़्यादातर हम लोग डेल्टा हेज नहीं करना चाहिए विद इन दिस रेंज। अगर आपका साइज ज़्यादा हो जाता है तो देन यू विल बी फोर्स टू डेल्टा हेज, बिकॉज आपका जो मार्क टू मार्केट है काफ़ी वाइडली स्विंग होना शुरू कर देता है। ठीक है, दिस इज मोटा मोटी मेरा जो अप्रोच है कल के लिए, एंड सिंस टुमारो इज अ 1DT मेरा जो साइज है काफ़ी छोटा रहेगा, एंड इफ आई डोंट फाइंड एनी अपॉर्चुनिटीज आई एम ओके टू टेक अ बैक सीट, बट इफ यू आर अ कंपल्सिव ट्रेडर लाइक आई यूज्ड टू be few years back, then probably trade with small size and trade with strict stop losses and trade with controlled exposure. ठीक है, let me know in the comments कल का एक्सपायरी आपके लिए कैसा गया, and I'll see you after tomorrow's market action. Till then, take care, bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.